So why public speaking matters? Read the first point. Public speaking builds trust, influence, and clarity. Is it clear? It builds trust. कैसे? If you are saying something, then only you can make someone feel trust, right? Yes, ma'am. एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आई बिलीव इन यू, so you are trusting me, right? That she believes in me. If I'm not speaking, my actions might say so, but you'll be in a doubt whether she believes in me or not, right? Yes, ma'am. If we say you are the winner of this crown, it is announced, and you trust and you go on stage that it's my name and now I can go. You trust that voice. Yes, ma'am. Without someone saying, you can't, right? Or it should not be coming from unauthentic source. So you're trusting the source कि ये अनाउंसमेंट अगर वहां पर जो एंकर है वो करें, या फिर मेरे टीम मेंबर्स, जो ग्रूमर टीम, जो मिस इंडिया प्लेटफॉर्म की टीम है, वो मुझे बोले, तभी मैं इस पे ट्रस्ट करूंगी. वैसे ही ऑफिस में अगर मेरा मैनेजर मुझे बोलेगा, मेरे टीचर मुझे बोलेंगे, तो हम ट्रस्ट करते हैं. सो उस कन्विक्शन और कन्वेंशन के लिए स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट, जो वो बोलेंगे. ठीक है. देन इन्फ्लुएंस का मतलब, if I am telling you to do something, you might do something very much blindly because you think that I am your mentor, but then I also must have had to prove it to you. You do what your mother tells you to, but वो उनके स्पीकिंग में वो इन्फ्लुएंस भी होना जरूरी है. सो उसमें वो पावर तो है टू इन्फ्लुएंस, बट ये एक आर्ट है, वो आर्ट हमें सीखनी है. ठीक है. Clarity, of course, your actions might confuse someone, but if you speak, it gives the clarity. Okay. Then it is also for public speaking के लिए, अगर हम इसको एकदम not just one to one conversation से relate करें, तो there will be people, जैसे जो politicians है, for example, if they say that हम उसके लिए आए हैं, रैली के लिए आए हैं, प्लीज वोट दिस पर्सन, प्लीज वोट दैट पर्सन, वो हम ट्रस्ट कर रहे हैं ना. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कुछ लोगों के दिल तक उनकी बात पहुंच रही है, कुछ लोग उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और वो क्लैरिटी दे रहे हैं कि हम कांग्रेस की साइड हैं, हम बीजेपी की साइड हैं, हम इस पार्टी की तरफ हैं. सो दैट्स इट. क्राउन गिव्स विजिबिलिटी, यू नो दैट. अगर कोई भी भीड़ में एक इंसान क्राउन पहन के है, तो लोग उसको अटेंशन देते हैं, उसको देखते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं, है ना. लेकिन वॉइस गिव्स इम्पैक्ट. अगर आप बैठे हो और आपने मानिका विश्वकर्मा को देखा, क्या आपने उनकी आवाज सुनी? पीछे आवाज आ रही थी? यस मैम. है ना. अदरवाइज कुछ वीडियोस जो हैं वो शेयर हुए हैं ग्रुप में, तब भी हमने सुना उनको. Yes. तो वो आप सुन रहे थे ना कि वो कितना जस्टिफाई हो रहा था उनके क्राउन के साथ, विद द पॉइज, विद थॉट प्रोसेस बीइंग वेरी क्लियर, शी वाज स्पीकिंग. Yes, ma'am. ओके. सो दैट्स व्हाई सिर्फ क्राउन मिलने से ही एवरीथिंग इज नॉट नेचुरली एज्यूम्ड. उसके लिए वर्क करना है आगे, उसको जस्टिफाई करने के लिए. ठीक है. देन जजेस डोंट जस्ट क्राउन अ फेस, दे क्राउन अ थॉट एंड जर्नी ऑफ अ पर्सन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर हमारे पास क्राउन विनर्स हैं प्लस अदर पार्टिसिपेंट्स हु कुड नॉट दिस टाइम विन द क्राउन, it's a message to everyone that the judges and the jury, they don't just give the crown to the person or the face कि ये pretty face है, या फिर ये good figure है, good looking है. It's not just that. They give it to the journey of a person also, and the thought that the person is bringing in, या फिर जो उनके public speaking के through convey हो रहा है. And everybody's journey is different, and the panel is different, so you never know who is able to connect in what way. You might not get connected with the person what they said, but maybe the person is able to connect with the right person, right timing. So that is also a possibility, and hence it is important to learn public speaking. ठीक है. कि हो सकता है कि
और सिर्फ क्राउन ही सब कुछ नहीं है, बट बिकॉज यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द ब्यूटी पेजेंट, सो हेंस द topic and the area we are targeting is that. But otherwise, one second. All right. And the next is every winner becomes a brand ambassador, role model, and speaker. Do you agree? Do everyone agree? Thumbs up if you agree. Why every winner becomes brand ambassador? ये क्यों लिखा है हमने? आप अभी आपको क्या लगता है कि किसके ब्रांड एम्बेसडर्स हो आप? Without any contract, you are brand ambassadors. How? The people who have won the crown. Ma'am, because we represent the face of Miss India Women of Dignity. Yes. You represent the platform where you won the title. है ना? जहां भी जाओगे टाइटल वही लिखा जाएगा, winner of that platform. Okay. And for you, you are also brand ambassador for Pleasant Personality Academy, Gauri. है ना? So आप सोचो, अब आपसे कोई बात कर रहा है एंड यू आर एम्बेसडर फॉर सच अ बिग प्लेटफॉर्म एंड यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट एंड अवेयर. कॉन्फिडेंट एक अलग चीज है और अवेयर होना एक अलग चीज है. अवेयर का मतलब मैं क्या बोल रही हूँ और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इतना अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है. ठीक है? दैट इज वाई ऑल्सो यू हैव टू लर्न द स्किल्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. एंड रोल मॉडल आप किसके लिए बनोगे? रोल मॉडल फॉर द अदर गर्ल्स अराउंड यू. लाइक यू वर जस्ट टॉकिंग टू रेखा एंड यू सेड कि मेरे यंग गर्ल्स हैं जो उनको मैं इंस्पायर कर सकती हूँ, राइट? सो यू ऑटोमेटिकली वो रोल मॉडल आप बनोगे नहीं, कोई मान लेगा आपको अपना रोल मॉडल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. तो आपको उनको मान लो ये कन्वे करना है कि मोबाइल देखना अच्छा नहीं होता, ज्यादा देखना, मान लो ये कन्वे करना है. हाउ विल यू कन्वे? How will you convey? I'm going to tell them that using phone for too long and without any special purpose, it's waste of time, because like scrolling on Instagram is really waste of time, and we are just scrolling without any purpose. Like if we are watching any educational video on YouTube, that is beneficial, but using it for just time pass is not a good thing. Okay. और बाकी कोई बोलना चाहेगा? How will you convey this thing to a younger person who assumes you are the role model? Thank you, Gauri. Anyone else? Ma'am, using screen for too much, using screen for a long time can lead to eye strain, and even I also faced mm, burning or a kind of dryness in my eyes, and because of that, there are also there are ways that people talks about that after every 20 minutes we look we we should look 20-meter away or blink 20 times. So this is the way we can improve that, and basically it might be not affecting us now, but in later life it will be a big problem for us. Absolutely. Anyone else? I would like to add one more thing. I mean, everything have two aspects of one bad uh, impression and good impression. It depends on us how we utilize our time. If we are giving it like for a purposeful thing, for our goal, for our growth, something professional, or if we are doing anything unprofessional, like we are just watching videos time pass. But if we are like creating content, doing something which actually helps us grow, that is important. So how we utilize our time, it's important, and doing everything under limit is good for us. No one? ऐसा तो नहीं है म्यूट करके कहीं घूमने चले गए हम?
हाँ जी। मैम ऐसा कुछ पूछ रहे हो क्या, आपकी फोन से रिलेटेड ही पूछ रहे हो कि हाउ यू कैन बी रोल मॉडल और समथिंग? फोन से रिलेटेड ही कुछ बताना है, तो इन लोगों ने तो सब कुछ बता दिया। नहीं, अगर अगर आप ये बात कन्वे करना चाहते हो किसी को, तो क्या कोई तरीका है जो आपको लगता है कि मैं ऐसे कन्वे करूंगी? अच्छा, फोन से रिलेटेड, ओके। सब सारी बातें तो इन दोनों ने बता दी है जो जो मेरे दिमाग में है। ठीक है, थैंक यू। सो नाउ माय फीडबैक इज, जैसे अभी आपने जो बात बोली और जो अनन्या ने बात बोली है ना, आप यू बोथ कन्वेड इट टू अ पर्सन, राइट? बट अनन्या का आ रहा है पर्सनल एक्सपीरियंस से, है ना? एंड इफ देर इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस, यू कनेक्ट बेटर एंड you connect faster. And if it is coming not from the personal experience, then it becomes like a information or maybe a direction, but पता नहीं है, मतलब you might not be very authentic person to tell that person the same thing, right? So ये एक मैंने आपको एक वो बताया है कि इस तरीके से लेते हैं लोग. So public speaking में sometimes you don't have to tell your, and sometimes people disconnect when you share something personal. So now you should know when to use your personal experiences to convey and when you don't should and you should not. ठीक है? So that is also important when you are a role model. अब हम इसको ऐसा लेते हैं कि माइट बी अनन्या के केस में ये हो सकता है कि द पर्सन माइट फील, ओ इनको हम रोल मॉडल मानते हैं, इनके साथ भी ऐसा हो चुका है, राइट? ये भी एक थॉट आता है. सो टू किल दैट थॉट, द वे शी एक्सप्लेन्ड कि ये टेक्निक्स होती हैं. सो आपने क्या किया, हाफ इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपने मेरे साथ हुआ वो भी बताया और उसका सोल्यूशन भी बताया. सो नाउ इट कम्स आउट लाइक अ कंप्लीट थिंग दैट यू हैव कन्वेड. ओके, सो दैट्स अ गुड थिंग. व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपके पास में इफ यू आर अ रोल मॉडल एंड अ पर्सन कम्स विद सम प्रॉब्लम, और इफ यू सी सम प्रॉब्लम, यू शुड बी एबल टू एड्रेस इट. एंड द वे अभी हमने इम्प्रॉम्प्चू जो पूछा, यू गाइस पार्टिसिपेटेड. सो अभी और रिफाइन करेंगे, बट यू आर डूइंग गुड. सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है पब्लिक स्पीकिंग में? थॉट आना. अब लक्ष्मी पे आते हैं. लक्ष्मी सेड, मैम जो मैं बोलना चाहती थी वो तो इन्होंने बोल दिया, है ना? सो इफ दिस थॉट कम्स, देन यू आर yet to become a public speaker. Okay, Lakshmi, I hope you're listening, because you should never run out of the thoughts. ये हमारा पर्सनल सेशन है, इसमें आई एम मेंशनिंग एवरीबॉडीज नेम. डोंट फील offended. I'm giving personal feedbacks to you all. So don't feel offended anyone, please, है ना? So now, Lakshmi, you could have instead said what, you know, I do agree to Gauri, as she mentioned that जब हमें कोई काम है, हम स्क्रीन पे रहते हैं, वो प्रोडक्टिव होता है, और जब काम नहीं है तो वो अनप्रोडक्टिव होता है. उस टाइम पे हमको रेस्ट कर लेना चाहिए. आप किसी और की बात को ही बोल सकते हो, आई सेकेंड दैट थॉट और दैट पर्सन्स ओपिनियन. सिमिलरली अगर आप दोनों को ही बोलते हो कि दोनों ने वो बात बोल दी, तो आप दोनों का नाम ले सकते हो. आई अग्री विद अनन्या एंड गौरी, एज दे अनन्या ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, बिल्कुल सही बताया, और गौरी ने ऐसा बताया. ठीक है लक्ष्मी, नेक्स्ट टाइम जब यू आर आउट ऑफ थॉट्स, थैंक यू. ऑलराइट. या फिर अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इन द रूम इफ देयर आर 2 people, देखो एक और बात बता रही हूँ, पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ इट्स अ ग्रुप डिस्कशन, या फिर ऐसी जगह पे जहां पे यू फील कंपटीशन है, वहां पर ये भी अच्छा तरीका है कि आप 2 लोग, जैसे हमारे सेशंस होते हैं वहां पर इट्स अ कंपटीशन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन, बट आपको किसी को गिराना नहीं, अपनी लाइन को बढ़ाना है. ठीक है? सो व्हाट हैपेंस, आप जिस तरीके से अभी बताया वो भी तरीका अप्लाई कर सकते हो. अनदर वे इज यू कोट समवन एल्स. आपको अगर महात्मा गांधी जी की कोई बात याद आ रही है, आप उनको कोट कर दो. कि जैसे उनकी एक स्टोरी है, उन्होंने कहा एक बच्चे ने को मम्मा लेके गए कि गुड़ खाना बंद नहीं कर रहा, उन्होंने कहा कि कल लेके आना. उन्होंने कहा कल भी आप ये बात बोल सकते थे कि गुड़ मत खाओ बेटा. सो गांधी जी ने कहा कल तक मैं भी गुड़ खाता था, मैंने छोड़ा है कल से, या फिर एक हफ्ते से मैंने छोड़ा है, नाउ आई कैन से. सो सिमिलरली मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोलना चाहती हूँ
यू नो। सो क्या होता है, आप मोर इम्पैक्टफुल होते हो कि नहीं, मोर ऑथेंटिक नॉलेजेबल साउंड करते हो। सो आपको नॉलेजेबल साउंड करना है, आपको इंप्रेसिव और कनेक्ट करना है लोगों से, अब से जब भी आप कोई बात बोलोगे। एंड यू शुड नेवर थिंक कि मैंने तो अपनी बात कन्वे कर दी, सामने वाले ने भी वैसा ही समझा होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू थिंक कि मेजोरिटी लोगों को मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूं, लाइक दैट यू हैव टू थिंक। ठीक है। एंड सी, क्राउन एंड दिस माइक, they walk together. If you think I have won the crown, now Mike Fear can stay. No, माइक फेयर नहीं जाएगा। माइक फेयर नहीं है तो भी क्राउन के चांसेस ज्यादा है, और क्राउन है तो अब माइक से मिलने के चांसेस ज्यादा है। ओके, व्हाट इज दिस? पब्लिक स्पीकिंग इज मोर देन जस्ट वर्ड्स। इन वेरी, अगर आप रीड कर सकते तो रीड करो जब तक आई एम टॉकिंग, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू रीड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। इट इज जस्ट कि जिसको नहीं अगर कनेक्ट हो पा रहा, नहीं समझ आ रहा, तो एक फटाफट से आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो टू रीड लेटर। ओके, सो बेसिकली जब आप बात करते हो ना, तो बहुत सारी चीजें नोटिस होती हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी नोट होता है। जैसे अनन्या ने अभी कुछ कहा, तो उसकी टोन में कॉन्फिडेंस क्यों था? बिकॉज वो रियल एक्सपीरियंस बता रही थी। okay, and when you articulate something, it is, and if you're not aware of that topic but you're articulating, वो भी दिख जाता है। जैसे गौरी ने जब कहा, she was aware of the topic, she is also, it's also coming from experience, कि मैं अपना कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ तो मुझे टाइम वेस्ट वाली फीलिंग नहीं आती है। जब मैं नॉन प्रोडक्टिव स्क्रॉल कर रही हूँ तब मुझे लगता है कि आई वेस्टेड माई टाइम। दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वो कॉन्फिडेंस नजर आता है। ठीक है। देन द वॉइस मॉड्यूलेशन, द वे अनन्या, बिकॉज अभी जो बोलेगा उसी का एग्जाम्पल लेंगे हम इन दिस सेशन। ओके, सो वॉइस मॉड्यूलेशन इज when she was talking, she also had a softer noise saying, softer voice saying, it is not so good feeling, you know, I also had irritation in my eyes. These were the expressions, and this was, she belittled her eyes. So these are also part of your communication skills. So it's fine and it's okay to show your emotions in your communication when you are talking. You don't have to be always very strong and confident. Clarity is important. You are clear कि इस टाइम पे मैं ये बात कन्वे कर रही हूँ। ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पर, पेजेंट विनर्स आर जनरली आज रियल स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस। आपका Q&A नहीं हुआ था, बट अदरवाइज that is also very important because it's not just for the pageant. If there'll be media bites, आप लोगों को मीडिया बाइट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे, राइट? मिले हैं। सो मीडिया जब इंटरेक्शन होगा तो आप सिर्फ उसी का जवाब दोगे ऐसा जरूरी नहीं है। मीडिया कैन आस्क यू एनीथिंग। मीडिया इज नॉट योर फ्रेंड। Media can ask that question first, and then if they feel ki okay, this person has gave very nice answer, we will ask this for this person this question. What will you say? No, I prepared only one. You have to be spontaneous. अगर आप mentally prepare ही नहीं होगे तो सबसे पहला सवाल आएगा, ये क्या हो गया? Am I supposed to give answer or not? At least इन सब सवालों से तो आपको फ्री हो जाना चाहिए। Now it's not just the media, anyone can ask anything from you, and it's not just the crown winners. Media can ask even the participants. Why? Because they want to understand the experiences and the exposures that the platform have given you, the groomers have taught you. Okay, so now what? अगर कुछ अटक गए तो क्या करोगे? सोचा है? चलो मैं एक क्वेश्चन थ्रो करती हूँ। लेट्स सी हु आंसर्स फर्स्ट। एवरीवन ऑन म्यूट, रेज योर हैंड। जिसका हाथ पहले मुझे दिख जाएगा, आई विल टेल दैट पर्सन। ओके, सो द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द न्यू लॉ दैट हैज कम फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, that only 4 year of age child is supposed to go in elementary school, is good law? कुछ कोई नहीं बोलेगा? ठीक है। ओके, हाँ बोलो गौरी।
Ma'am, I don't think the new law that has come is right according to my perspective, because I think that uh, Okay, let I think me. it's better to like because nowadays the kids are more engaged with phone, because I have seen like during traveling or even at my like cousin's home, the kids are always like scrolling on YouTube shorts or watching cartoon videos, because I think that it is better so that they, like, instead of scrolling they can study or even play any games in school or somewhere like that. So I think it's better that they should go early school rather than going late, because they are going to Great. utilize their time in productive things. अच्छा, ये बात आपने पहले सोची और फिर हैंड रेज किया, या फिर हैंड रेज करने के बाद ये थॉट आया? हम हैंड रेस करने के बाद थॉट आया। ओके, और नो पहले आ गया दिमाग में? ठीक है, थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू, आई अप्रिशिएट दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग एंड यू शेयर्ड योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो। चलो, इस क्वेश्चन के बहाने ही सही, वी गॉट टू नो समथिंग, राइट? दैट्स अमेजिंग थिंग। सो नाउ आई कम कि अब मैं आपको गाइड कर रही हूँ, फीडबैक नहीं, गाइडेंस। सो द गाइडेंस इज, अभी वेयर वर वी, जैसे गौरी ने एक बात बोली, नो के साथ शुरू किया। जब भी आप कोई भी बात नो के साथ बोलते हो, जैसे लक्ष्मी ऑल्सो सेड समथिंग ऑन द सिमिलर लाइन्स, बट देर इज अ डिफरेंस। तो हम यहां से क्या सीखेंगे कि हमें नो वर्ड नहीं बोलना पहले, ठीक है? नो नहीं बोलना, हमारे मुंह से सबसे पहला शब्द नो कभी नहीं निकलना चाहिए। हो सकता है हमने क्वेश्चन सही ना समझा हो, जैसे लक्ष्मी ने क्वेश्चन को रिकन्फर्म किया ना, दैट इज अ गुड वे। आप रिकन्फर्म कर लो अगर आप श्योर नहीं हो, आपने अगर उस बारे में पहले सुना नहीं है। अगर आपने वो न्यूज सुनी है तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं सुनी है तो हमेशा पूछ लो, क्योंकि जो मैंने न्यूज बोली आपको उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, मैंने उसको थोड़ा सा मोल्ड करके बोला, एंड नो वन ऑफ यू वर अवेयर, बट दैट्स फाइन, यू डोंट हैव टू बी अवेयर, यू आर नॉट मैरिड विद स्मॉल किड, बट किसी के जैसे उनको अवेयरनेस है कि उनके नेफ्यू है, नीस है, ठीक है? सो यू शुड ऑलवेज रीचेक एंड रिकन्फर्म कि क्या आप ये पूछ रहे हैं। अगर आप ऐसा पूछते हैं तो मेरी समझ में ऐसा ऐसा ऐसा, सो द वे शी एक्सप्लेन कि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, that's the better way. But again, I'm coming to another point here कि I'm talking about in public if you are asked, and it's not your personal interview, it's not a podcast, ये तो हमारा पर्सनल सेशन है। सो लक्ष्मी का जैसा उसने जवाब दिया, इट्स एक्सेप्टेबल। Otherwise, you should understand it is a media platform, और it is not just to know my personal life। तो हम ऐसी जगह पे अपनी पर्सनल लाइफ ना शेयर करें, बेटर है। ओके, सो अनन्या, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है स्क्रीन टाइम को लेके, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वहां आपको नहीं शेयर करना है, वहां पे हमें आंसर देना है जैसा गौरी ने दिया। ओके, बट Okay. अभी नहीं, उस वाले आपके आपके क्वेश्चन का बोल रही हूँ, है ना, उस ओकेजन पे। बट जब हम पर्सनल अभी इंटरेक्ट करें, यहाँ आप मिक्स बात कर सकते हैं, बट इट्स जस्ट आई एम टेलिंग यू कि आप सिचुएशन वाइज आंसर करेंगे हमेशा लाइफ में, ठीक है? एंड कमिंग बैक टू दिस, लक्ष्मी, यू सेड कि मुझे फेस करना पड़ा बिकॉज आई गॉट ट्रोल्ड एंड ऑल। सो ये मैं इस पे नहीं बोल रही, मैं पर्सनली आपको एक बात बोल रही हूँ कि कोई भी लॉ जब यूनिवर्सल आता है तो क्या होता है कि उस टाइम क्या हुआ, आपने लेट ज्वाइन किया, क्लास के बाकी बच्चे आपसे बहुत आगे थे, लेकिन जब यूनिवर्सल आएगा तो उस डेट ऑफ बर्थ के सारे बच्चे एक साथ ही एडमिशन लेंगे। हु विल ट्रोल हुम देन, है ना, वो वाली बात है। और ये नर्सरी के एडमिशन की बात है, प्ले ग्रुप्स आर स्टिल ओपन, सो किड्स कैन गो टू द प्ले ग्रुप्स, बट नर्सरी में 3 years मार्च में कंप्लीट होने के बाद ही एडमिशन होगा। एंड उसका लॉजिक, कि मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ कि अब आपको क्यूरियोसिटी ज्यादा ना हो तो हम शेयरिंग। सो अगर 3 year प्लस का बच्चा होगा तभी होगा, बिकॉज 3 year से पहले बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा डिटैचमेंट पेरेंट्स के साथ नहीं डेवलप हुई होती है, सो दे आर नॉट लर्निंग, इंस्टेड उनके अंदर एंग्जाइटी फॉर्म हो जाती है, दे फील द पेन। सो अब अगर वो 3 years का हो जाता है, पहले 2.5 साल के बच्चे भी चले जाते थे स्कूल में ना। सो एनईपी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, दे विल नॉट बी होल्डिंग द पेंसिल, दे विल बी वर्किंग विद द crayons and all, that's a different thing.
बट अगर नहीं पता है तो आप तुरंत, कोई नया सवाल आया है तो उसको जाके आप तुरंत सोशल मीडिया, सॉरी, गूगल पे सर्च कर लो, तो क्या हुआ, आपने एक नई इंफॉर्मेशन कैच कर ली। सो आप उसको एज बूम यूज करो, ठीक है, एज बून, आपके लिए वो वरदान है, ठीक है। एनीथिंग एल्स, यू हैव एनी डाउट स्टिल Ma'am, हियर? हाँ, ma'am, suppose we are in any media interview or even on stage Q&A round, and some question comes up with the topic which or the news that we are not aware and we have no idea about that. So how can we answer that? हाँ, ठीक है। सो इट्स ओके, बट बहुत डम नहीं हम साउंड कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि ये करंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं या फिर ये कोई जनरल टॉपिक है जो शायद मुझे पता होना चाहिए। जैसे बोले कि यू नो कैपिटल ऑफ अमेरिका, ग्लास होगा ना। सो कैपिटल ऑफ अमेरिका कोई बोले तो क्या है कैपिटल ऑफ अमेरिका? हाँ, इतना टाइम, वॉशिंगटन डीसी है ना Yes. कैपिटल ऑफ इंडिया, तो पता है हमें। तो एटलीस्ट कंट्रीज के कैपिटल्स हमें पता होने चाहिए, कुछ जनरल नॉलेज बेसिक, मैं कह रही हूँ सिर्फ 5th क्लास के बच्चे की जनरल नॉलेज की जो बुक है 1st to 5th, उतनी ही पता कर लो, बस उतना रीड कर लो। सी दिस इज व्हाट, आपको अपने ऊपर वर्क तो करना पड़ेगा ना। अभी आपसे ये चीज कोई पूछ नहीं रहा, बट लाइफ में पूछ सकते हैं ना। सो अगर आपको पब्लिक फिगर बनना है, आपका सिर्फ मॉडलिंग ओनली एज मॉडल नहीं मुझे चलना। देखो, एक सिंपल बात है जो मैंने प्रेजेंटेशन में रिमूव किए कुछ चीजें, ज्यादातर कुछ रॉन्ग वर्ड्स यूज किए जाते हैं ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए कि दे आर ब्रेनलेस ब्यूटीज। डू यू वांट टू बी काउंटेड अमंग दोज? नहीं ना। एवरीवन लाइक्स ब्यूटी विद ब्रेन, ये टाइटल सबको चाहिए। तो वो ब्रेन तो सबके पास है, बट वो ब्रेन नजर कैसे आएगा? आपकी नॉलेज इनहांस करने से, ठीक है। तो ये तो आपको कुछ चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। करेंटली जो हमारे, आप गूगल पे जाओगे, आप बोलोगे टॉप 5 लेटेस्ट टॉपिक्स क्या चल रहे हैं न्यूज में, टॉप 5 लेटेस्ट न्यूज अबाउट द ब्यूटी पेजेंट, क्योंकि ये आपकी इंडस्ट्री है ना। तो ये तो आपको हमेशा एवरी डे आपके कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए जो मैं रोज गूगल पे ढूंढ लेती हूँ। एवरी मंथ मैं अपडेटेड रहती हूँ, ठीक है। टॉप 5 ब्यूटी पेजेंट्स, है ना। यू शुड नो फ्यू थिंग्स अबाउट योर इंडस्ट्री, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री से बाहर का कुछ पूछेंगे तो वी कैन ऑलवेज से क्या प्लेटफॉर्म से रिलेटेड पूछिए। ज्यादातर आपको पूछा जाएगा प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। तो ये अभी आप न्यू है, न्यू क्राउन विनर्स है, सबको पता है, एंड यू आर इन लर्निंग स्टेज। सो बहुत सारे ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे नहीं पहली बात जहां पर आपको ऐसा फील हो कि ये क्या मुझसे पूछ लिया है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसा सवाल जो कि अनन्या ने पूछा है कि ऐसा कुछ मुझसे पूछ ले मैम जो कि मैं उस टाइम स्टक फील करूं या मुझे पता नहीं है, सो यू कैन ऑलवेज से दैट दिस इज समथिंग आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ, या फिर दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ माई इंटरेस्ट, स्टिल यू वांट माय ओपिनियन, एक बार पूछ लो। एंड इफ दे से हाँ फिर भी आपका ओपिनियन चाहिए, तो आप उनसे पूछ सकते हो, कैन यू एक्सप्लेन अ लिटिल अबाउट इट इन लिटिल डिटेल, पूछ लो आप, देयर इज नो हार्म। लेकिन बैक एकदम से आप ऐसे सकपका जाओगे जैसे हमने यहाँ लिखा, देखो इन द प्रीवियस प्रेजेंटेशन, वेयर इज द प्रेजेंटेशन, सी rambling shows confusion, not honesty. So if you will say I think this is rambling, this shows कि आप confused हो इस बात को लेके भी कि मैंने सुना है कि नहीं सुना है। So better है कि you say that this is something new I'm hearing, or maybe I could not understand, can you explain or can you repeat the question? क्या पता वो क्वेश्चन रिपीट करने में अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जिसमें आपको याद आ जाए जो वो पूछना चाह रहा है, या इतनी देर में आपके ब्रेन ने प्रोसेस कर लिया हो। या फिर आप बोल दो
this actually this area is not of my interest. मान लो आपसे political question पूछ ले, तो आप बोलो कि you know what, politics is not my area of interest as of now. I will read about it, what you just mentioned, I will read about it. ठीक है. सो ये होता है कॉन्फिडेंटली, आप अपने पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंट हो. देखो आप अभी छोटे हो, कितना कुछ ज्ञान रखोगे, कितना ज्ञान होगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दुनिया भर का ज्ञान हो सकता है. ठीक है. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी ऑनेस्ट. ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट. ओके. एनी अदर क्वेश्चंस अभी तक? Yes, ma'am. या. Like I said no in the starting. So instead of saying no, how can I like say or Like put my Lakshmi started. She started with saying that according to me, kids should go to school at the early age because at least they will not stay on the screen. यही था आपका जवाब? yes, And better they learn something in the school. So for me, I feel that this, because अगर कोई ये कहता है कि रूल आ चुका है, तो आप गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि नो, खराब है ये रूल, एंड यू आर नॉट दैट अथॉरिटी ऑल्सो. सो आप अपना ओपिनियन दे दो. यस नो बोलने की जरूरत नहीं है. हर डू यू नो या डू यू अग्री का जवाब यस और नो नहीं होता. क्योंकि आपने नो बोल दिया ना, उसके आगे कोई आपका लॉजिक नहीं सुनना चाहेगा. सिर्फ उतना ही बाइट चलाएंगे. नो 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 बोला इन्होंने, नो बोला. समझ रहे हो? ये आज की बात नहीं है. जो मैं आज सेशन दे रही हूँ, आपको 10 साल बाद समझ आएगा कि क्यों बोला था. देखो जो ट्रोलिंग्स होती हैं अपने आप डिजिटल वर्ल्ड में ही तो क्राउन जीत रहे हो, डिजिटल वर्ल्ड में ही तो स्टेप कर रहे हो ना आप. तो डिजिटल तो आपसे दूर जा नहीं सकता. सब कुछ इमीडिएट है. आपका नो कहां कहां यूज होगा, किस तरीके. सवाल पूछा, कट टू नो, एंड यू विल नॉट डिनाई. क्या आपसे पूछा जाएगा, आप बोलोगे कि आपने ना नहीं बोला? बेटर यू गिव द लॉजिक अराउंड इट. चलो हम एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं. ठीक है. आर यू गर्ल्स रेडी? Yes, ma'am. ओके. कभी भी कोई भी समझो, कोई भी सेंसिटिव एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है ना, तो हमें कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना होता. ठीक है. सो अनदर क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू. एक ब्यूटी पेजेंट है जहां पर उन्होंने क्राइटेरिया रखा है द मिनिमम हाइट इज 5'9" बिकॉज दे वांट टू केटर टू इंटरनेशनल मैगजीन ओनली. उनका टाई अप हुआ है. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? रेज योर हैंड्स फटाफट. अनन्या विल स्पीक फर्स्ट. एक सेकेंड. लक्ष्मी, आई एम नॉट एबल टू सी यू. राशा, आई एम नॉट एबल टू सी यू. इसलिए मेरे को जिनका फेस दिखा मैंने उनका नाम बोला. इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप हैंड रेज कर दो. आई विल टेल यू टू स्पीक फर्स्ट. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बोलो अनन्या. Ma'am, I think height should not be the only criteria for any particular beauty pageant because that, first of all, it's not in our control, and it's a part of our physical appearance, kind of physical thing which we can't control. Like, we can build our knowledge, we can build confidence, but we can't just decide that I want to be that much tall. So that's not in our hand, and uh, there is nothing like what 5'9" women will do that 5'6" or 5'3" can't. So that's why I think that height should not be a barrier in any beauty pageant. ओके अनन्या, थैंक यू. गौरी. अनन्या, आपने बाइंड अप बहुत सही तरीके से किया, मतलब जल्दी किया, वो अच्छी बात है. यू आर नॉट रिपीटिंग योर सेंटेंसेस. गौरी. म्यूट. यू म्यूट. यू म्यूट. According to me, like my opinion on this is that height should not bound someone to their full extent, how much they can grow. I feel that because in India, the women
here have an average height of 5 to 5'3". So I think that taking 5'9" as height criteria is not fair enough. So I think that everyone, no matter how much their height is, if a girl is of 5'3" inches or 5'9", 5'8", 5'6", I don't think we should bound them within height criteria. So I think it should be open for all the height criteria. Ma'am, you're muted. Okay, Gauri, thank you. Anyone else wants to speak? I do agree with Ananya Gauri. You agree. Okay. Any feedback as a listener, Lakshmi? The like the response was so nice. और अगर मैं मतलब फर्स्टली मैंने स्टार्ट किया होता बोलना तो शायद सेम जो अनन्या ने कहा है वही मैं बोलती। अगेन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ। मेरी हाइट 5'5" है और बहुत सारे शोज में जाकर के मुझे सिर्फ रिजेक्शन ही मिले हैं। तो यस, हाइट शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया। Very nice. एंड मैम अभी भी लाइक मोस्टली रनवे शोज में स्पेशली FDCI एंड ऑल उसमें 5'8" 5'9" क्राइटेरिया होता है एंड मैं 5'7" होके मतलब मुझे थोड़ा लगता है कि अभी भी कमी है ऐसा। सो आई डोंट थिंक कि अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है एज 5'7", क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी हाइट बहुत अच्छी है इस इंडस्ट्री के लिए, बट स्टिल मुझे वहाँ पे फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि जो 5'3" या 5'5" है उनको कितना ज़्यादा फेस करना होता होगा। सो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न फॉर माय आंसर। ओके, नाइस। देखो, थॉट्स आते हैं ना, बाद में आते हैं ना थॉट्स। अगर हम क्वेश्चंस को सोचते हैं, सच में सोचते हैं, डीपली सोचते हैं, तो हमें सबका आंसर पता होता है, हमारा ओपिनियन होता है, हर चीज के लिए हमारा ओपिनियन होता है। लेकिन हम कैमरा के सामने, माइक के सामने, ऑडियंस के सामने शायद हेजिटेट कर जाते हैं। And now you know me maybe, and this is a different structure where we are talking. You are able to speak very calmly. आपको चाहे ये फीडबैक मिलने वाला है कि तुमने बिल्कुल गलत बोला, चाहे आपको यही फीडबैक, मैं तो आपकी कमियां बताने के लिए हूं ना यहाँ पे। वेरी गुड बोलने के लिए तो जनता है ना आपके पास, है ना। लेकिन कमी बताने वाले नहीं है ना, निंदक नियरे राखिए, सो आई एम योर निंदक। तभी तो यू विल बी गेटिंग बेटर, यू विल बी इम्प्रोवाइजिंग, है ना। जहां पे आप हो, यू आर ऑलरेडी एट सम स्टेज, एंड वो किसी ना किसी लर्निंग से ही आप आए हो। सो इट्स नॉट अ डिनायल कि अब तक आपकी कोई लर्निंग ही नहीं हुई, बट आई वॉन्ट टू टेक यू फ्रॉम हियर टू दिस लेवल। ऐश्वर्या राय, अनफॉर्चुनेटली हर किसी को ओल्ड होना है, वो भी ओल्ड हो रहे हैं ना। पीपल आर लुकिंग फॉर द फ्रेश फेस, इट माइट बी यू, एंड देन यू विल हैव अ स्टोरी टू टेल, राइट। सो वो कैसे होगा? You have to be at this level, then only people will recognize you, people will take you there। ऐसा नहीं है, you already have to be that person, and then people will say she is the one। okay, that is important, and that is why I'm कोई कुछ पूछता है ना तो तभी इंस्टेंट माइंड में नहीं आ पाता है कि इसका आंसर क्या दो, तभी सोच नहीं पाती हूँ। और जैसे वो कॉल ड्रॉप होता है या फिर मेरे हाथ से चांस जाता है तो लगता है कि आई वुड हैव सेड दैट, बट ऐसा हो नहीं पाता। मतलब इंस्टेंट वो चीज दिमाग में नहीं आ पा रही, बट बाद में आ रहा है कि हाँ मैं ये बोल सकती थी। उसका आंसर मुझे पता होता है बट मैं बोल नहीं पाती हूँ इंस्टेंट वो चीज। या उसकी टेक्निक आई विल शेयर विद यू। अभी हम फटाफट ये वाले स्लाइड्स आगे जाएंगे, हमारा टाइम एक्चुअली वेटिंग में ज्यादा निकल गया है ना गौरी, हमने कितना वेट किया सबका। नो प्रॉब्लम। सो वो हम जल्दी वहां पर पहुंचेंगे, ताकि आई वांट कि जिन्होंने एटलीस्ट ज्वाइन किया, दे शुड हैव ऑल द टिप्स। ओके, so see the point, abhi I am giving you the feedback, and Lakshmi, you also listen carefully, though they have spoken and you are saying that I am very I am appreciating, they have said nice, that's a good thing and a very positive feedback। मैम आप बताओ, शायद नेक्स्ट में मैं बोल हूँ फिर अच्छे से। ओके, सो सी गौरी, आपने नो तो नहीं बोला, नो वर्ड तो नहीं बोला, लेकिन आप दोनों ने शुरुआत की हाइट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया, इट्स अगेन अ नो।
आपने अपना जवाब से क्यों शुरुआत की? आप पता है कैसे कर रहे हो आंसर्स? जैसे कोई पूछता है कि वाई द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट बिकॉज, जैसे हम स्कूल में करते हैं। सो आपने आंसर ऑलरेडी मान लो वहीं से शुरू कर रहे हो, दो इट इज अ राइट टेक्निक। बट मैं क्या बोल रही हूँ, आप इस लेवल पे हो ना ऑलरेडी, मैं आपको अगले लेवल की बात बता रही हूँ कि आप अपना लॉजिक पहले दे दो, फिर अपना जवाब बोलो। इंसान ऑलरेडी सोच लेगा कि शायद ये नो ही बोले, राइट? बट वो आपको एंड में बोलना है, हो सकता है वहां तक जाने तक आपका जवाब बदल जाए। आपने नो बोल दिया और फिर अपनी बात को बदल दोगे तो वो गलत हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल लेते कैसे। आप इसका जवाब ऐसे दे सकते थे दैट there is a work, there is lot of work for all height people, right? So I feel, जैसे कि अनन्या ने बोला, so I feel that there is no work or no such project that a 5'8" girl can do but 5'3" girl can't do. So I think height should not be the parameter. और जैसे आपने बहुत अच्छा एक सेंटेंस स्टेटमेंट बोला था गौरी, दैट क्या बोला था आपने, क्राइटेरिया, the criteria of the height should not be the barrier, right? You mentioned something like that. So the point is कि पहले अपना लॉजिक दे दो और फिर अपनी बात को बोल दो, ठीक है? बट यहाँ पे मैं आपको एक बात, चलो अदर देन दिस एक बात बता रही हूँ, अगेन यू आर साउंडिंग समथिंग लाइक little unaware, very immature, very naive, because this is your industry related question. And as Ananya said, it's better that you keep connected with the people from the industry. जैसे अनन्या ने एक बात बोली, तो आज लक्ष्मी को भी एक बात पता चल गई, राशा को भी, गौरी को भी, कि बहुत बड़े बड़े फैशन वॉक्स में 5'8" भी उनको कम लगता है या मिनिमम 5'8" चाहिए होता है. So she being 5'7" and wearing heel, possible कि वो heels भी पहनती होगी, she is not getting the opportunity and she is feeling bad about it. आपको ये बात पता चल गई, so you are aware and this exists. It means पेजेंट में अलाउड नहीं है, पेजेंट में अलाउ भी कर दिया है तो देयर इज स्टिल सम प्लेटफॉर्म जहां पर इट्स अ क्राइटेरिया एंड इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट, है ना? सो द पॉइंट इज यू कैन से, मैंने क्या बोला, पेजेंट के लिए. सो यू कैन से आई अंडरस्टैंड फॉर द फैशन डिजाइनर्स, दे डिजाइन देयर क्लोथ्स फॉर सर्टेन बॉडी टाइप, फॉर सर्टेन हाइट, राइट? However, the pageants are the platform. ये आपकी नॉलेज के लिए जिंदगी भर याद रखना. Pageants are considered, इस तरीके से बोलो, pageants are considered the platform not only for the fashion industry but also for TV industry, for many other platforms where the women can, use their voice to lead or represent a cause. मतलब ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने का मतलब सिर्फ हीरोइन बनना या फैशन वॉक करना ही नहीं है. आप टीवी इंडस्ट्री की भी कुछ बन सकते हो, आप अपने एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हो, आप अपने फील्ड के कोई भी डॉक्टर फील्ड के आप बहुत अच्छे हो सकते हो, यू कैन बी फ्रॉम एनी अदर फील्ड, आपका पर्पस कुछ और भी हो सकता है, तब भी आप ब्यूटी पेजेंट में आ सकते हो और विन भी कर सकते हो. जरूरी नहीं है हर विनर मूवी में रोल प्ले करे, हर विनर वॉक करे, ऐसा जरूरी नहीं है. या फिर अगर आप फैशन डिजाइनर हो तो आपको हाइट भी मैटर नहीं करेगी, आप अपने ही शो पे वॉक भी तो करोगे. तो हो सकता है आप उसके लिए ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करो ताकि ये बताना चाहो कि आई एम अ गुड फैशन डिजाइनर एंड देन यू गो. तो ब्यूटी पेजेंट और फैशन इंडस्ट्री आर टू डिफरेंट थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब मैंने आपको जब ये वाली बात बोली कि वो इसलिए अनाउंस कर रहा है 5'9" बिकॉज वो क्या केटर करेगा, एक पर्टिकुलर मैगजीन और फैशन डिजाइनर है फॉरेन में, उसी को अपने पार्टिसिपेंट्स को केटर करना चाहता है. सो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? टेल मी व्हाट्स रॉन्ग इन इट? पुलिस में, आर्मी में हाइट का क्राइटेरिया है ना फॉर मेल ऑल्सो. अ मेल ऑफ 5 foot can't fire a gun, the person of 5'5" can fire. बताओ. He can, right? But there is a criteria. So always be a, अगर आप पॉजिटिव कैसे साउंड करते हैं, if you say I
आई रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ और द डिसीजन, हमेशा डिसीजन को रिस्पेक्ट करना है. I respect the decision of any platform. If they have decided, there must be something they have kept in notice and consideration. However, my opinion otherwise is this. समझ आया एक और तरीका आपको जवाब देने का? If I say that she is the winner for pleasant personality, Gauri is the winner for pleasant personality, and someone tells I don't agree, how you feel? She should not be. How you feel? Tell. It's their opinion. It didn't make you feel anything? No, ma'am. Okay. So similarly, the pageants who are keeping the criteria 5-9, it's thinking it's people's opinion. It does not matter. हमने सोच लिया अपना. So you will know कि मुझे जिसको करना था उसने choose करा या फिर मुझ में कुछ दिखा होगा. That's fine. So how you think your opinion will make difference to them? Why I'm telling you this is कि ये हमारा सेशन सिर्फ एक मीडिया बाइट के लिए नहीं है. एक क्वेश्चन को हम यूज करके अलग अलग चीजें कोशिश कर रहे हैं सीखने की. आपने इसका जो आंसर दिया दैट्स फाइन, उस पर आपको कोई सजा नहीं होगी. एंड ओपिनियन वाज आस्क्ड, दैट्स ओके. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आपको 360 डिग्री देखना है हर क्वेश्चन के अराउंड. अदर देन व्हाट फर्स्ट थॉट केम टू यू ऑल्सो समथिंग एग्जिस्ट, है ना? Yes, ma'am. जैसे उनको 5-9 तो उनके डिजाइनर्स उस हाइट का बनाते होंगे, वहां पर उनका कोई पर्पस होगा. कैमरा एक हाइट पे लगा होगा कि इस हाइट की मॉडल्स आएंगी, इस एंगल से हम रिकॉर्ड करेंगे. अब कोई अगर कम हाइट की आ जाती तो उनको कैमरा एंगल हिलाना पड़ता होगा. यू डोंट नो किसी का क्या पर्पस है, किसकी क्या सेटिंग है, क्या सेटअप है, क्या स्पॉटलाइट्स हैं. यू डोंट नो बिकॉज यू आर नॉट इन द इंडस्ट्री येट. ठीक है? सो द पॉइंट इज कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको पॉजिटिव आंसर देना है. जैसे इस क्वेश्चन का आपका पॉजिटिव होता आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज डिसीजन, दे मस्ट हैव थॉट समथिंग, हाउएवर. बट हमेशा नेगेटिव माना जाता है. हाउएवर इज द रिप्लेसमेंट ऑफ बट. हाउएवर, ठीक है? हाउएवर माय ओपिनियन इज दिस. ठीक है? अगर आप किसी की पॉजिटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव स्टेटमेंट बोल करके भी अपना ओपिनियन चेंज करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो. फेयर इनफ? समझ आ गया ना? Yes, ma'am. Okay, thank you Lakshmi for so many thumbs ups. Okay, so what holds you back? This is very important. What holds you back? ये तो कुछ लिखे हैं हमने चीजें, बाकी आपको पता होगा कि क्या है वो वजह जिसकी वजह से आप नहीं बोल पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो. लक्ष्मी नोज हर रीजंस, गौरी नोज हर रीजंस, अनन्या नोज योर रीजन. आप ये क्वेश्चन लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपका टास्क है इसको लिखना कि मुझे लगता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग ये इसलिए नहीं कर पाती हूँ, या मैं इसलिए अटक जाती हूँ, या मैं कैमरा फेसिंग में यहाँ मेरे को ऑब्जेक्शन इशू आता है. मैं ये कह रही हूँ अगर आपको कॉन्फिडेंट भी फील हो रहा है ना आज, तो भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप सिर्फ इतने ही नहीं, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओ. तो उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होने में आपको क्या रुकावट आ रही है वो खुद लिखोगे आप. इज इट फियर ऑफ जजमेंट? इज इट लैक ऑफ स्ट्रक्चर और मैसेज क्लैरिटी की मुझे पता ही नहीं है ना कि मेरे को बोलना क्या है, मैं पहले क्या बोलूं, ये क्लैरिटी नहीं है हमको, तभी अटक जाते हैं हम. नर्वस बॉडी लैंग्वेज या फिलर वर्ड्स. किसी किसी को क्या होता है माइक हाथ में आते ही बॉडी हिलने लग जाती है, शेक हो जाती है, कैमरा आते ही फंबल करने लग जाता है. या फिर कुछ लोगों की आदत होती है, ये मैंने भी बहुत काम किया इसके ऊपर. अदरवाइज आई एम जो बात मैं आपको बता रही हूँ, फियर ऑफ जजमेंट. क्या लग रहा है? हाँ जी लक्ष्मी. समझ गई. आपने किस चीज पर काम किया है? इस पे किया है जो मैं अभी करके दिखा रही थी. आपको सुन के कैसा लग रहा था? यही लाइन, फियर ऑफ जजमेंट और लैक ऑफ स्ट्रक्चर और मैसेज क्लैरिटी, नर्वस बॉडी लैंग्वेज और फिलर वर्ड्स, ये मैं रीड कर रही हूँ, वो आपको कन्वे कर रही हूँ. एक बार म्यूट करो लक्ष्मी. क्या करूँ? रीड करूँ? नहीं म्यूट.
हाँ, अब आपको समझ आएगा। ये मैं जब आपको रीड करके बता रही थी तो गौरी आपने क्या नोटिस किया? डिड यू नोटिस समथिंग सडनली, सम चेंज एंड शिफ्ट इन माय वॉइस? क्या था वो? You are not confident. आई वॉज यूजिंग अ वर्ड, आई वॉज कॉन्फिडेंट, बट आपको लगा कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। आई वॉज यूजिंग फिलर्स, आई वॉज यूजिंग ओके, मुझे लग रहा है मेरे अगले सेंटेंस और पिछले सेंटेंस में गैप होना ही नहीं चाहिए, बट इट इज इरिटेटिंग, नो? एंड आपको समझ ही नहीं आएगा बोलना क्या चाह रहे हैं। Yes, ma'am. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि व्हाट होल्ड्स यू बैक, तो मेरे लिए होल्ड्स यू बैक का आंसर ये था, ये ओनली फिलर वर्ड्स, बिकॉज आई स्टार्टेड गोइंग ऑन स्टेज मच अर्ली ऑन। सो मेरे को ये था कि मेरे फिलर्स नहीं बंद होते थे बहुत। आई वॉज कॉन्फिडेंट बट आई वॉज डूइंग दिस। सो यू माइट नो कि आपके साथ मैं नहीं बता सकती उतना ज्यादा जितना आप बता सकते हो कि मुझे मैं इतना कॉन्फिडेंट नजर क्यों नहीं आ रही हूँ, या मैं पब्लिक स्पीक में बहुत अच्छी क्यों नहीं हूँ, मेरा रीजन क्या है। ये तो कम ही रीजंस है, इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है। ब्लैकआउट हो जाता है, मुझे लोग दिखाई नहीं देते, या मुझे लोग कुछ ज्यादा दिखाई देते हैं, कैमरा मुझे लगता है मेरे अंदर आ गया है, क्या है रीजन, या सडन क्वेश्चंस हैं, वॉट एवर द रीजन इज। जैसे लक्ष्मी, यू नो योर थिंग आई टोल्ड यू, राइट लक्ष्मी? यू हैव टू वर्क ऑन दैट, ओके? स्पीच क्लैरिटी, एवरीवन हैव टू वर्क ऑन स्पीच क्लैरिटी। देखो, पेन को होल्ड करो, पेंसिल को करना चाहिए वैसे। आई एम नॉट हैविंग, 1 सेकेंड। I was not prepared I'll be doing that. Thank you, that's it. So pencil, you have to hold the pencil like this, okay? And then talk. Now your tongue is above it. Your tongue will be touching above the pencil. And now we will talk like this. I'll be talking like this. Okay? This will help open my... Okay. Now I want to say some sentences. Okay? Some. Say some. Some. Okay. So देखो, when I'm saying this, then स से ज्यादा श निकल रहा है, and we have to practice कि हमारे जो words होते हैं ना, जो हमारे connecting words भी होते हैं, similar sounds होते हैं, उसमें हमारा हमेशा मिस्टेक हो जाता है, ज्यादातर इंडियंस का, बिकॉज हमारे हिंदी में समाचार, स्कूल, ये ज्यादा यूज होता है, श का बहुत कम इस्तेमाल होता है। जैसे इंग्लिश में XYZ का कम इस्तेमाल होता है, ठीक है? श श ये बहुत कम यूज होता है। वी आर यूज्ड ऑफ स्पीकिंग स, है ना? राजस्थान है हमारे यहाँ, राजस्थान नहीं है। बट इंग्लिश में ज्यादातर वर्ड्स आर श, ओके? सो कभी कभी यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो जाती है, एंड वी इंडियंस ओनली मेक फन ऑफ इंडियन एक्सेंट। सो टू ओवरकम दैट, कि अगर ये चीज मुझे कहीं होल्ड कर रहा है तो आई विल प्रैक्टिस विद दिस पेंसिल, ठीक है? या अगर आप स्टैमर कर रहे हो तो भी आप इससे करोगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट, हु इज दिस लेडी? It's me, right? Yes, ma'am. Okay. Connection starts with understanding. Why specifically this picture? Because यहाँ पर मैं बहुत not very conventional look of mine I'm carrying. I'm carrying a different look and different mood I am in, right? It's more flowery day and everything. Okay. So why it's, मैं आपको यहाँ read नहीं कर रही, आप screenshot लेके read भी कर सकते हो, screenshot भी ले सकते हो. The point is यहाँ पर देखो, great speakers don't just talk, they connect and deeply understand the audience, their needs, values and expectations. आप कहाँ हो उसके हिसाब से ड्रेस करो, कहाँ जा रहे हो उसके हिसाब से बोलो। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका जो ऑडियंस है, आप जहां आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो ऑडियंस फैशन इंडस्ट्री का होगा जो आपको सुनेगा, तो आपको अपनी बातों में, अपने जवाब में उससे रिलेटेड कुछ बात बोलनी है जिससे उनका फायदा हो या उस इंडस्ट्री के लोगों का फायदा हो।
आप उसमें किसी और की तारीफ, अगर मान लो कुछ अपनी मम्मा की तारीफ भी कर दोगे मान लो, ठीक है, तो चलो मम्मा तो आपके देखेंगे मान लो, ठीक है, आपने मम्मा को बाइट दिखाओगे, बट आप अपने स्कूल की एक फ्रेंड की कर दोगे जिसको इंडस्ट्री में कोई जानता नहीं है, मैं तो कहती हूँ पेरेंट्स की भी फॉर दैट मैटर ऑन द मीडिया, आप एक बार मेंशन कर दो, एक क्लिप होनी चाहिए आपको, जिसको आपको क्रेडिट देना है उसकी जिंदगी में एक क्लिप तो जरूर होनी चाहिए. So if people are associated from the industry, you are also responsible to, देखो, fix each other's crowns. If you will uplift the other person will pay you back in some way or the other. Like if you are mentioning the platform, and if you mention wrong, bhai don't mention. मिस इंडिया वुमन ऑफ डिग्निटी को मिसेस बोलोगे या MS को MISS लिखोगे, देन बेटर यू डोंट मेंशन. तो मिस्टेक किए बिना अगर आप कुछ भी मेंशन करते हो प्लेटफॉर्म को या फिर अपने ग्रूमर्स का नाम, ग्रूमर्स के बारे में, इफ यू फील रियली समवन हैव इम्पैक्टेड यू इन द जर्नी, यू कैन मेंशन. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है या आपको लगता है कि आई वांट टू रियली से सो, why you are doing it, I'm saying it, still you can still do it more often even on your social medias. आप अपने सोशल मीडियाज को अपना कम्युनिकेशन चैनल बना लो. आपको किसी और मीडिया हाउस की जरूरत नहीं है, आपको किसी और के क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है. द ट्रिक एंड द टिप इज स्टार्ट आस्किंग अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ एंड से, ट्रिक दे रही हूं आपको, आओ अपने लाइव पे आओ, चाहे एक वीडियो क्रिएट करो कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी जब मैंने क्राउन विन किया, या फिर मेरे DM में ये मैसेज आया है एंड आई थॉट आई शुड एड्रेस दिस. आप अपना वीडियो बना के डालो, आप उसमें किसी को मेंशन करना है मेंशन दो. समझ रहे हो, भले ही अभी आपका छोटा चैनल है, बट देन ये आपकी शुरुआत होगी, बहुत फनी वीडियोस भी होंगे, डिलीट कर सकते हो अपने चैनल से, बट इट विल हेल्प यू लर्न, इट विल हेल्प यू प्रैक्टिस, बिकॉज रियल ऑडियंस आपको फीडबैक देंगे. कोई बोलेगा ऐसे और वीडियोस बनाओ, कोई बोलेगा अरे मत बनाओ बहुत ज्ञान हो गया, कोई बोलेगा कि सच में भी पूछा किसी ने कि नहीं पूछा, या फिर कुछ नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन लिख दो अपने रील के ऊपर, क्वेश्चन लिख दो, आंसर बता दो. खुद प्रैक्टिस करो, 10 वीडियो गलत बनेंगे, जो 11th अच्छा बना होगा उसको पोस्ट करो. अगली बार 3 टाइम्स की प्रैक्टिस में ही बोलने लग जाओगे, उसके बाद इम्प्रॉम्प्टू बोलने लग जाओगे, लाइव पे आने लग जाओगे. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, हर फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना है अपना. यू आर योर ओन ब्रांड, ताकि लोग आपको बनाना चाहें, लोग चाहें कि आप उनको रिप्रेजेंट करो. एंड यू हैव टू बी वेरी मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया फॉर दैट. ओके, जैसा आपने बोला प्रोडक्टिवली रहना है, आई एम नॉट सेइंग फुल टाइम, यूटिलाइज इट प्रोडक्टिवली, रिकॉर्ड योरसेल्फ, फॉल इन लव विद योरसेल्फ. ओके, इस इंडस्ट्री के लिए तो बहुत जरूरी है, कोई और आपको प्यार नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड है, हर कोई सेल्फ लवर है. यहाँ पे हर कोई मेकअप करके सुंदर और एक जैसे ही दिखते हैं. आपने देखा है फैशन बॉक्स में पता ही नहीं चलता ये वो वाली मॉडल है कि दूसरी मॉडल है, सब एक जैसे लग रहे होते हैं. So you have to applaud yourself, you have to love yourself. ठीक है, so why I said कि ऑडियंस अगर ऐसे है जहां पर कि आपको ये ड्रेस पहनना है तो आप ये पहनो. ऑडियंस कैसी है, ऑडियंस कैसे बात करना चाहती है, कि चाहती है आप कुछ भी बोल दो एंड दे लाफ, बी लाइक दैट. हर टाइम पे क्राउन का वेट लेके मत चलो, बट जहां जरूरत है आपको पॉइज्ड वे में, आपको पता है कि ये कहाँ जाएगा, मीडिया पे जाएगा, क्या इसको शेयर करने में मेरा प्लेटफॉर्म प्राउड फील करेगा, क्या मेरे ग्रूमर प्राउड फील करेंगी, तो आप उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करो और वैसे आंसर्स करो. ठीक है, नेक्स्ट इज, कुछ पूछना है अभी तक, कोई डाउट? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट्स ले लेना एंड यू कैन शेयर द स्क्रीनशॉट्स इन द ग्रुप आल्सो, ये वाले, क्योंकि ये दीज आर द टिप्स इफ समवन वुड लाइक टू यूज. सो स्ट्रक्चर, क्लैरिटी, create clarity, sorry. So you have to structure your speech. ये एक सिंपल रूल आपको बताया, 3 पार्ट, ओपनिंग, बॉडी एंड क्लोजिंग. ठीक है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन राउंड में भी प्रिपेयर किया था, रिमेंबर, इट वाज आल्सो इन द 3 पार्ट्स ओनली, कि पहले आप ओपन कैसे कर रहे हो, एड्रेस करके आप ओपन कर रहे हो, फिर आप बताना क्या चाहते हो, और वाइंड अप कैसे करना है.
ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्या करेंगे हम, ओपनिंग में हम हुक द ऑडियंस. ये आप अपने रील्स में यूज करो, ठीक है. हुक द ऑडियंस, ये तो हम सुनते रहते हैं ना कि कुछ हुक लगाना होता है, अदरवाइज रुकते नहीं है लोग, है ना. सो व्हाट इट कुड बी, कुछ भी पावरफुल स्टेटमेंट, फनी और क्रिएटिव. वो कोशिश आप वो ऐसा मत करो, क्रिएट जो आपका खुद का क्रिएटेड हो, ठीक है, इन योर कम्युनिकेशन. अ क्वेश्चन कैन बी देयर, एक स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो, पंच लाइन हो सकती है, या कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट हो सकता है जिसका जवाब, वही वाली बात है, पहले जवाब मत दो, आप पहले खुद बोलो हाइट क्राइटेरिया होना चाहिए क्या. फिर आप ऑडियंस रुकेंगे, अच्छा ये क्या बोलना चाहती है, फिर बोलो कम हाइट के लोग ये भी कर सकते हैं, यही काम ये वाला हाइट वाला भी कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है. लेकिन पेजेंट्स की भी अपनी लिमिट होती है, या उनका पर्पस होता है, या फिर किसी ऐसा आपने बोला, लास्ट में बोला मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, तो आपने एंड तक उनको बनाए रखा. तो ये आपने ओपनिंग लाइन सोच ली, फिर आपने उसकी बॉडी सोच ली कि रेलिवेंस इसी टॉपिक से दूर नहीं जाना चाहिए, प्लस इसी इंडस्ट्री के लोग सुनेंगे तो मुझे और क्या बोलना है, और कौन कौन सुनेगा मेरी बात को, क्या सिर्फ पार्टिसिपेंट सुनेंगे, नहीं ऑर्गेनाइजर भी सुनेंगे, हो सकता है ये वो वाला प्लेटफॉर्म भी सुने जिसके लिए मैं बोल रही हूँ, या जिन पर ये हाइट क्राइटेरिया होता होगा, तो मुझे उनको भी नहीं नाराज या खफा करना है ना. सो यू हैव टू बी बैलेंस्ड इन कम्युनिकेटिंग. एंड लास्ट में मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं रिस्पेक्ट तो करती हूँ सबके ओपिनियन का, आपने वाइंड अप कर दिया, ठीक है. अनदर टिप इज प्रैक्टिस. यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ, चाहे मिरर में करो चाहे रिकॉर्ड करके करो, ठीक है. यू हैव टू प्रैक्टिस जो भी आप बोलना चाहते हो. आप नर्वसनेस से मत फाइट करो, मतलब होता है कि अगर आपको नर्वसनेस फील हो रही है, दैट्स ओके, उसको मैनेज करो कि जब मैं बोल रही हूं ना उस टाइम पता ना चले. वो कैसे मैनेज होगा, अपना वीडियो ऑन करो, कांप रही हूं मैं लेकिन वहां में कुछ अच्छा बोल रही हूँ, और फिर देखो कि इसमें पता चल रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा, कॉन्फिडेंस आएगा, कम नर्वस फील होना शुरू कर दोगे, ठीक है. ब्रीथ करो, पहले पहले ब्रीथ कर लो. अगर स्टेज पे भी हो, या माइक सामने है, कैमरा सामने है, लाइव हो, तो भी यू कैन ब्रीथ. नोबडी स्टॉप्स यू फ्रॉम ब्रीदिंग. Always deep breathe. Yeah, now we can start. Like that. ऐसे आप कॉन्फिडेंट ही नजर आओगे, ठीक है. कभी भी माइक के सामने जाने से पहले डीप ब्रीथ एंड ड्रिंक सम वाटर. ओके. यूज पॉजेस कॉन्फिडेंटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार हमको लगता है हम अटक गए हैं, तो अब हम अटके रह गए. जैसे गौरी, आपने जब किया था आप अटक गए थे, बट आपने बहुत अच्छा पिकअप किया. आपने उस पॉज में थोड़ा सा आप शुरू में हुए, बट नेक्स्ट टाइम डोंट, बिकॉज अभी तो वैसा सेशन है, बट आपने उस पॉज को बहुत पिकअप बहुत अच्छा किया. बस उस पॉज को भी अनकॉन्फिडेंट मत लगने दो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे अगली बात बोलूं, और पॉज है, तो जस्ट स्टे काम विद अ स्माइल, कि आप गैदर कर रहे हो अपना थॉट, इंस्टेड ऑफ जिससे कि आपने एक्सप्रेशन से ही कन्वे कर दिया शांत होते हुए भी. डोंट डू दैट, ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी इंपॉर्टेंटली पॉजिंग विद कॉन्फिडेंस, एवरीवन फॉर दैट मैटर. वॉच योरसेल्फ स्पीक योर एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग. ये देखो, फिलर्स आपको नहीं यूज करने हैं, या फिर कुछ के फिलर्स होते हैं, एक्चुअली, आई थिंक सो, एक्चुअली, मेजरली, रियली, आई थिंक सो, यू नो, ऐसे करते हैं ना. इस तरीके से नहीं. सामने वाला बोलेगा आई डोंट नो. भाई आप बताओ, आप बता रहे हो, यू नो क्या होता है, ठीक है. सो दैट यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस करना है, रिहर्स करना है आपको. ओके. लास्ट स्लाइड है, कौन रीड करेगा? रीड. लक्ष्मी रीड करना चाहेगी, एक बार रुको. लक्ष्मी, You don't need to be become a speaker overnight, but from today you must start becoming a better one because every pageant participant deserves a voice as powerful as her belief. Thank you, Lakshmi, for reading. I hope you all understand the meaning. है ना. एक ही रात में नहीं हो जाओगे परफेक्ट. ये तो कुछ टिप्स हैं, अभी और भी टिप्स, और भी सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस भी वी कंडक्ट, राइट, एट प्लेजेंट पर्सनालिटी एकेडमी. वी ग्रूम a person the perfect speaker also. But एक वेबिनार, एक सेशन है to motivate you and to tell you
that now you know me, now you know Pleasant Personality Academy. कभी कुछ अटकते हो, कभी कुछ लगता है आपको, so I'm always there. You can tell me, you can ask, you can. अभी आज के लिए इतना ही है, यही टिप्स हैं आपके लिए. I hope it was beneficial. I thought I'll be conducting it for all the participants of Miss India Women of Dignity this season. It was many things we have included this season. It was not previously added, but this season I offered that this season I want to speak to the contestants personally, and I hope you liked what I proposed. That's all. Thank you very much, ma'am. Okay. Thank you. Take care. Have Bye. a good night. Good night. Bye, Have ma'am. yeah.